डियर स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਮੇਡ ਈਜ਼ੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ। ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ, ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰੂਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਡੈਲਟਾ ਮੈਥਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਥਡ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਲਿਮਿਟ ਐਚ ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0 ਐਫ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਐਚ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਐਚ, ਅਤੇ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਆਫ ਐਫ ਐਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਫਸਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰੂਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਵਾਲਾ, ਯੂ ਓਵਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਈਨਸ ਯੂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਪੋਨ ਵੀ ਸਕੇਅਰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਜੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਨ ਐਕਸ ਦੀ n-1 ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਈਨ ਐਕਸ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੋਸ ਐਕਸ, ਕੋਸ ਐਕਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਐਕਸ, ਟੇਂਜੈਂਟ ਐਕਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਐਕਸ, ਸੀਕੈਂਟ ਐਕਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਸੀਕੈਂਟ ਐਕਸ ਟੈਨ ਐਕਸ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਚੇਨ ਰੂਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। चेन रूल मैं नहीं तो एग्जाम्पल ही लेना तो क्लास की चेन रूल है अपने को हाँ जी। चेन रूल क्वेश्चन कराना फंक्शन तुहाडे कोल है फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 1 की पावर 3 इनू लैट वाई कर लीए आप, ठीक है। थोड़ी ये NCERT जी एग्जाम्पल वाई अपने को आपां की करांगे लैट वाई इज इक्वल्स टू टी दी क्यूब वेयर टी नू की है 2x प्लस 1 है जिहड़ा वो मान लांगे, इनू टी मान लिया आपां। तो जी डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू होगी वो कहते बराबर होगी फिर डी वाई बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। इनू एक नंबर मान कहना एक तो आप इनका डेरीवेटिव कर देना, एक इनका डेरीवेटिव कर देना। इस रकम का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करांगे, इस रकम का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करांगे। हुण इनका डेरीवेटिव किया, इनका डेरीवेटिव प्लस 1 च आपां सिक्ख्या की फॉर्मूला सी 3 अगे आ जाऊगा, एक पावर घट जूगी। आ फॉर्मूला इत्थे वर्क करूगा। जिहड़े बच्चों ने प्लस 1 दे विच नहीं कीता मैं फिर रिपीट करा देना। आ फॉर्मूला हुंदा कहण दा मतलब जिहड़ी पावर है वो अगे आ जाती हुंदी है, ठीक है। तो वेरीएबल की एक पावर जिहड़ी घट जाती है, 3 अगे आए ना टी दे 3 विचों एक घट जाना 2 रह जाना, ठीक है। मतलब 3t स्क्वायर इनका जिहड़ा अपने कोले फॉर एग्जाम्पल इत्थे देख लो, मान लो तुहाडे कोले आ गया x की पावर 7 डेरीवेटिव, इहदा 7 अगे x की पावर एक जी घट जाती है, ये पावर रूल आ गया। इनका डेरीवेटिव करते हैं p का। सो बच्चे प्लस 1 का जोड़ा डेरीवेटिव वाला चैप्टर तो आता होना चाहिए। इस चैप्टर को करने तो पहला इनका डेरीवेटिव किया डी टी बाई डी एक्स, दो एवं एक्स की वैल्यू 1, एक का डेरीवेटिव 0,
जे ये समझने च दिक्कत आ रही है उस तो पहला तुसीं +1 का जो डेरीवेटिव चैप्टर जो बच्चे ने किया हुआ है वो कर लैन, नहीं तो इनू ही ध्यान नाल सुन लो, ये समझ लग जूगा जे तुसीं नहीं भी किया। एक्स कली का डेरीवेटिव 1 होंदा, याद रखना एक्स कले का डेरीवेटिव 1 होंदा। इहदे विच फॉर्मूले आ, ये फॉर्मूले तुसीं लिख लिख के याद करियो, ये फॉर्मूले नाल ही सम होने हैं। सो आपां नूं इन्हां दोवां दी वैल्यू आ गई, डी वी बाय डी टी की भी आ गई तो डी टी ओवर डी एक्स की भी आ गई, पुट इन 1 कर दो, एक नंबर च पा दो। डी वाई बाय डी टी की वैल्यू 3t² इंटू डी टी बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी कटी है 2, इन्हों मल्टीप्लाई करा दिए 6 आ गया, 6t² आ गया, टी की वैल्यू कितनी सी 2x + 1 उनका स्क्वायर। सो ये आंसर आ गया तो ये क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व करना सी। अगली एग्जांपल करते हैं। अगली एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 21। हाँ ये देख लो, ये किवें करनी है। आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल तुसीं देख लियो, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हाँ ये सारे बच्चे 10 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अज थोड़े जो क्वेश्चन करवाना है बच्चों, पहले 6-7 क्वेश्चन करते हैं आप। पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 5.2 अपने को। हाँ इनका फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन डेरीवेटिव फाइंड करना है इनका। इनू लेट y = sin x² + 5 हो। सो इनू की करना है अपन y = sin t वेयर t की वैल्यू की माननी है अपन x² + 5। इनका डेरीवेटिव कर दो dy बाय dt, इनका डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करा करेंगे। साइन का डेरीवेटिव की होंदा वा cos, इधर डेरीवेटिव कर लो dt बाय dx। x² का डेरीवेटिव 2 अगे आए ना, x ते 1 पावर 2 की घट जानी है 2 विचों, वो 1 ही रह गया। कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव 0 होंदा बच्चे, ठीक है। जिन्होंने नहीं पता, जिहड़े भी कॉन्स्टेंट रकमां होणगियां उन्हां दा डेरीवेटिव की लवांगे आपां 0 लवांगे। सो इनका आंसर की आ गया 2x आ गया। चेन रूल वाला आपां नूं फॉर्मूला की सीगा dy बाय dx किंदे बराबर सी dy बाय dt इनटू dt अपॉन dx। dy बाय dt की वैल्यू कितनी आई है cos t, वो कर दो। dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई है 2x, वो कर दो। 2x अगे ले आओ, इत्थे t की वैल्यू भर दो। t की वैल्यू कितनी सी आ लिखी सी आपां। सो ये आंसर आ गया तुहाडे कोल। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपां इस तरह सॉल्व करना सी, इहदे नाल जो एग्जांपल होगी वो देख लीजिए। सैकंड क्वेश्चन आपे करना, थर्ड भी आपे करना, होमवर्क है। सैकंड ते थर्ड होमवर्क है तुहाडे। अगे फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 वही अपन लेट y कर लिए सीकेंट tan √x। इहदे विच बच्चे 1 2 3, ठीक है, 3 टर्म्स आ गई। मतलब सीकेंट का एंगल tan है, tan का एंगल भी डिफरेंट आ गया अपने को, ठीक है। सो इनू किवें लेट, इनू किवें मन्नांगे आपां। ये क्वेश्चन y नूं आपां जे सीकेंट u मान लिए, वेयर u = tan t मान लिए, वेयर p √x मान लिए आपां। ये चेन बन गई हुण, ठीक है। सीकेंट u आह, ठीक है, आह tan t, u की होगा tan t ते t की होगा √x। हुण इनका डेरीवेटिव जिहड़ा करांगे आपां dy बाय du, वो भी आ गया सीकेंट u tan u आ गया। इनका डेरीवेटिव भी आ जाना du बाय dt का, इनका आ जाना सीकेंट स्क्वायर t आ जाना इनका डेरीवेटिव अगे। इनका डेरीवेटिव इनका मतलब की होंदा x की पावर 1/2, इनका डेरीवेटिव की होगा 1/2 अगे आ जानी है,
1/2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 माइनस हो जाना, 1/2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 माइनस किया, अपने को -1/2 आ गई पावर, ये नीचे जाके प्लस ही बन गई, आ गया। हुण जिहड़ा चेन रूल इत्थे ही बनूगा, इत्थे अपने को जिहड़ा dy/dx की वैल्यू बनूगी वो dy/dt गां सॉरी dy/du, क्योंकि y का फंक्शन है u का, u का फंक्शन है t का, t का फंक्शन है x का। सो ये 3 टर्म्स आ गई अपने को। सो डेरीवेटिव भी इत्थे 3 आउणगे, एक तो dy/du इंटू du/dt इंटू dt/dx। सो इत्थे वैल्यूज फिल करिए, dy/du की वैल्यू कितनी आई है, secant u tan u, ठीक है जी, बड़ा स्ट्रेट करके लिख दिया, secant u tan u इनकी वैल्यू आई है, du/dt की आई है, secant स्क्वायर t आई है, dt/dx की आई है, इत्थे कैलकुलेट की सी आपां 1/2 रूट एक्स। ये सारिया वैल्यूज दे विच हुण u की वैल्यू फिल कर दी है, u की है tan t, इत्थे भी u tan t, t की वैल्यू की सी तुहाडे कोले रूट एक्स, वो फिल कर दी इनटू ये आ गया गां t की वैल्यू की है, हाँ रूट एक्स इत्थे फिल कर दी है, tan रूट एक्स secant स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। ये तुहाडा आंसर है आ गया। ये क्वेश्चन है इस तरह सॉल्व करना सी। जे अपने को चेन अगे ज़्यादा की बनेगी तो आप फिर उस हिसाब नाल क्वेश्चन है जोड़े सॉल्व करांगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 है जोड़ा वो भी इस तरह का ही है, वो तुसीं ट्राई कर लेना, जो ना निकले तो मैनूं पुछ लियो। हाँ जी बच्चे की क्वेश्चन नंबर 5 है जोड़ा उन्होंने आप जिवें क्वेश्चन रूल पहला सीखा हुआ है उस तरीके ही करते हैं। चेन रूल नाल ये बहुत लेंथी हो जाना क्वेश्चन, पर उन्होंने जो मैंशन ना हो आप जो मर्जी मैथड है जो यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन रूल वाला बच्चे सवाल है, ठीक है, ध्यान नाल देखना है, ठीक है। चेन रूल नाल भी क्वेश्चन हो जाऊगा, बट चेन रूल नाल लेंथी है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रूल लगूगा है AU/V। अपन क्वेश्चन रूल +1 किया है, आप cos cx plus d as it is derivative of sin ax plus b minus sin ax plus b as it is derivative of cos cx plus d अपॉन जिहड़ा नीचे रकम होवे उनका स्केयर हुंदा cos cx plus d, sin का डेरिवेटिव cos ax plus b गां अकॉर्डिंग टू चेन रूल इनका फिर डेरिवेटिव होना माइनस ये sin ax plus b as it is cos the derivative minus sin cx plus d according to chain rule इनका फिर डेरिवेटिव होना के ओवर सारे दे cos square cx plus d। अगे चलते हैं, cos of cx plus d cos ax plus b जिहड़े डेरिवेटिव विचों कांस्टेंट मल्टीपल च पे होंदे बाहर आ जाते हैं। ये +1 कीता है, ए बाहर आ जाना, एक्स का डेरिवेटिव 1 बी कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव 0, आहा माइनस माइनस प्लस sin ax plus b sin cx plus b इनका डेरिवेटिव c आ जाना। सी यानी एक्स का 1 तो 0 जिवें इत्थे ए आया सी ओवर cos square cx plus d। ये तो आंसर है वो आ गया।
टोटल क्वेश्चन इंज करना सी। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इनके प्रोडक्ट रूल लगना। जो आंसर से थोड़ा जिहा फर्क होया तो मॉडिफाई करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, y इज इक्वल्स टू cos x क्यूब साइन स्क्वायर x 5। सो ये दो फंक्शन बना चुके हैं, u इंटू v प्रोडक्ट रूल आ गया ना, डेरिवेटिव करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहला था आह u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर इनका डेरिवेटिव प्लस a as it is डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यूब। ये ध्यान नाल देखना बच्चे, इनका मतलब की होंदा है sin x 5 होल पावर 2, इनका मतलब ये होंदा अपने को, ठीक है। ये इनका डेरिवेटिव किवें होगा, हम आह 2 पावर अगे आ जानी है, इस फंक्शन की 2 दे विचों 1 पावर घट जानी है, जिहड़ा अंदर फंक्शन है उनका भी डेरिवेटिव। कहने का मतलब की है इत्थे किहड़ा डेरिवेटिव वर्क करूगा, जे अपने कोले कोई फंक्शन होवे उनकी पावर n होवे, n अगे आ जाती है, फंक्शन की 1 पावर घट जाती है, गां फंक्शन का भी की है डेरिवेटिव हुंदा। सो इत्थे वो फॉर्मूला वर्क कीता अपने कोले, पहला आ 2 पावर अगे आ गई, ठीक है, साइन एक्स की पावर 5 1 पावर घट गई, गां फिर इनका डेरिवेटिव अंदर वाली जो फंक्शन का इधर इधर हम होल पावर नहीं है बच्चे, इधर सीधा ही कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स क्यूब, गां जो एंगल है चेन रूल के अकॉर्डिंग इस एंगल का भी जो डेरिवेटिव होना। हुण आ 2 अगे लिया 2x क्यूब साइन एक्स 5 साइन का डेरिवेटिव फिर अकॉर्डिंग जिवें इत्थे डेरिवेटिव मिलता ऐसे ही उवें होने इस फंक्शन का डेरिवेटिव साइन का कोस x पावर 5 गां x की पावर 5 का फिर डेरिवेटिव, आह प्लस माइनस की हो गए माइनस हो गए, ठीक है। नाल आह साइन एक्स क्यूब, इनका एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ठीक है जी। सो हम अपने को लास्ट स्टेप ही रह गया 2 cos x क्यूब, इनका डेरिवेटिव आ गया, आ 3 अगे ले आओ, एक्स स्क्वायर भी अगे ले आओ, ठीक है जी। सो ये आ मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 टू द 10 x रेज टू पावर 4 अगे ले आओ, सो इनका आंसर मैच कर लियो। सो जी कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई जहाँ उन्होंने आंसर होर से तरीके से लिखा है लिख लियो। अज ले इन्ना ही। सो अपने क्वेश्चन 6 तक हो गए है, 8th तुहाडा होमवर्क है, 7th 8th होमवर्क है, ट्राई कर लियो, 8th ट्राई कर लियो, 7th तो 9th 10th आप कर लाँगे फिर। सो ये थोड़ी एक्सरसाइज 5.2 है, तो 10 क्वेश्चन ही है, ये आलमोस्ट अपनी डन ही है। बाकी है जो क्वेश्चन आप एक अद्धा जो भी करना है अगले लैक्चर के 5.3 है जी वो करा 5.1 थोड़े जी ज़्यादा लैक्चर लग गए, बाकी एक्सरसाइज थोड़ी छोटियां ही हैं, अगे 1-2 है जी ज़्यादा वड्डियां। सो ये तुसीं कंप्लीट कर लेंगे 5.2 जिन्ने क्वेश्चन करवाए हैं, तो जो मैं